আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। বিজেপি নেতা অমিত শাহ সাম্প্রতিক সময়ে এক জনসভায় বলেছেন, বাংলাদেশের গরিব মানুষ দেশে খাবার না পেয়ে পশ্চিমবাংলায় চলে আসছে। তিনি এর আগেও বাংলাদেশকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ভারত, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, এমনকি চীন থেকেও বেশি। জিডিপি প্রবৃদ্ধি বলছে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে কতটা বেড়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল একটি দেশ। যদিও আমাদের দেশে এখনও কিছু মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে, কিন্তু বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী গত 10 বছর বাংলাদেশ সরকার 1 কোটি মানুষকে দরিদ্র সীমার নিচ থেকে বের করে এনেছে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় 1 দশকে 3 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিশ্বের মাঝে খুবই বিরল একটি ঘটনা। এছাড়া বাংলাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে অভূতপূর্ব। এত সব অর্জনের পরেও বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে অমিত শাহর এমন অবাস্তব বক্তব্য তার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেনকে একটা ধন্যবাদ দিতেই হয়, কারণ তিনি অমিত শাহর বক্তব্যের যথাযথ জবাব দিয়েছেন। তার এই জবাবের পর থেকেই ভারতীয় মিডিয়ায় শুরু হয় আলোচনা সমালোচনা। কেউ কেউ অমিত শাহর সমালোচনা করছেন, আবার অনেকেই একে আব্দুল মোমেন সাহেবের প্রশংসা করছেন। কী ছিল সেই ভিডিওতে? আসুন ভারতীয় মিডিয়ার নিউজ থেকেই দেখি, এবং তারপরেই আমরা দেখব বিবিসি হিন্দির একটি প্রতিবেদন, যেখানে বলা হচ্ছে দরিদ্র ও ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ সূচকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ভারত। আজকের ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে করে অমিত শাহর কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্যের যথাযথ জবাব সম্পর্কে সবাই জানতে পারে। बांग्लादेश विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में दिए गए एक बयान पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में कहा था कि बांग्लादेश के गरीब लोग भारत में आते हैं क्योंकि वहां उनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता है। शाह का कहना था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये घुसपैठ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश से घुसपैठ रोकना उनका एजेंडा है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन भड़क गए हैं। उन्होंने बुधवार को शाह के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बांग्लादेश के बारे में भारत के गृह मंत्री का ज्ञान बेहद सीमित है। उनकी इस तरह की टिप्पणी अस्वीकार्य है, खासकर तब जब बांग्लादेश और भारत के बीच इतने गहरे संबंध हैं। इस तरह की बयानबाजी दोनों देशों के बीच गलतफहमी पैदा करती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि कई मामलों में वे भारत से बेहतर हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में भूख से अब किसी की मौत नहीं होती। देश के उत्तरी जिलों में बस मौसमी गरीबी और भूख है। मोमेन ने कहा कि हम भारत से कई मामलों में बेहतर हैं। जैसे भारत में 50% से ज्यादा लोगों के पास शौचालय नहीं है, जबकि बांग्लादेश में लगभग 90% लोग काफी अच्छे शौचालयों का उपयोग करते हैं। इस बात की शायद उनको जानकारी नहीं है। मोमेन ने कहा कि उनके देश में भले ही पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन कम शिक्षित लोगों के लिए ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारे देश में कम शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के काफी अवसर हैं। बांग्लादेश में भारत के 1 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। हमारे लोग रोजगार के लिए भारत नहीं जाते हैं। हमारे लोगों को भारत जाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश की ओर से विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के संदर्भ में अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। এখন আমরা দেখব ভারতের দারিদ্রতার অবস্থান নিয়ে বিবিসি হিন্দির একটি প্রতিবেদন। তবে তার আগে কিছু কথা না বললেই নয়। যেমনটি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন সাহেব বলছিলেন, বাংলাদেশ থেকে কোনো মানুষ ভারতে যায় না, বরং ভারতের 1 লাখ মানুষ বাংলাদেশে কাজ করছে। যদি হিসাব করা হয় তাহলে সেই সংখ্যা 3 লাখেরও বেশি হবে। ভারত বাংলাদেশ থেকে রেমিটেন্স আয় করছে, আবার বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিদের অপমান করছে। অমিত শাহ বলছেন বাংলাদেশিরা খাবার না পেয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসে, অথচ বিশ্ব ক্ষুধাসূচকে বাংলাদেশ 107টি দেশের মাঝে 75তম, সেখানে ভারত 95তম। অমিত শাহর বক্তব্য যে সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন তার একটি সহজ উদাহরণ দেই। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, বাংলাদেশ বা ভারতের মানুষ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো কিংবা আমেরিকা, কানাডায় যেতে চায়, কিন্তু কখনো কেনিয়া, সুদান অথবা ইরাকে যেতে চায় না। এর কারণ হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো মানুষের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি,
একই যুক্তি যদি আমরা পশ্চিমবাংলা ও আসামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তাহলে দেখব আসামের মাথাপিছু আয় $800 আর পশ্চিমবাংলার মাথাপিছু আয় $1600। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় $2200-এরও বেশি। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পশ্চিমবাংলা ও আসাম থেকে কতটা শক্তিশালী। বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবাংলা ও আসামের তুলনা হয় না। অথচ অমিত শাহ দাবি করেছেন বাংলাদেশের মানুষ নাকি পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশ করছে, যা পুরোপুরি হাস্যকর। भारत इतना भूखा क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 177 देशों की लिस्ट में 102वें नंबर पर है। इतना ही नहीं, भारत की रैंकिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूखे लोगों की संख्या साल 2015 में 78 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 82 करोड़ हो गई है। भारत में हंगर यानी भूख को सीरियस यानी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट को वेल्ट हंगर लाइफ नाम की एक संस्था जारी करती है। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या और इसके पैमाने क्या हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी जारी की जाती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 तक जीरो हंगर का लक्ष्य रखा है, यानी दुनिया से भूख पूरी तरह मिटाने का लक्ष्य। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स सिर्फ भूख का स्तर ही नहीं नापती, बल्कि कुपोषण के अलग अलग स्तरों और बाल मृत्यु दर का अध्ययन भी करती है। हर देश को 100 अंकों की स्केल पर मापा जाता है। इसके बाद भूख, कुपोषण के अलग अलग स्तर और बाल मृत्यु दर के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। 100 में 20 से 34 तक पॉइंट पाने वाले देशों को हंगर इंडेक्स में गंभीर श्रेणी में रखा जाता है और भारत भी इसी श्रेणी में है। अगर भारत की रैंकिंग को करीब से देखें तो एशिया की तीसरी और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद इसकी रैंकिंग बहुत खराब है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत सबसे नीचे है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी। पाकिस्तान 94वें नंबर पे है और बांग्लादेश 88वें। ब्रिक्स देशों में भी भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है। और हाँ, इस रैंकिंग में आबादी की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करते वक्त 1000 या हर लाख में कुपोषित बच्चों की संख्या या बाल मृत्यु दर देखी जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आर्थिक विषमता, यानी अमीरों और गरीबों की आय में बहुत ज्यादा अंतर। गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 73% पूंजी महज 1% लोगों के पास है। भारत में कुपोषण और भूख के भयावह स्तर की दूसरी सबसे बड़ी वजह लोक कल्याणकारी योजनाओं की कमी और उनका प्रभावी न होना भी है, जैसा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भी कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास के मुद्दों पर पर्याप्त काम नहीं किया गया है। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। ভারতীয় মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এটাই হোক আপনার প্রতিবাদ। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।